Good morning students. Today I will teach you the first chapter of physics of class 9, that is motion. Before studying the chapter, one thing comes in our mind, that what is motion actually? In real, what is motion? वास्तव में motion है क्या? In the previous classes we have studied about this word, what is motion? Motion is anything which is moving, which is not at rest, and the body is actually moving from one place to another, then it is said to be in motion. Now we will study this topic in a deep manner. So the first chapter is motion. What is the actually definition of motion? Motion is the changing of position with respect to time. Motion of any body is the changing of position. Here it is written, changing of position with respect to time. Means at some point of time I am here, and after some time I am coming here. So my position changed. Before some time I was here, now I am here. So we can say that I am in motion. Here another example. For example, there is a table and this duster is placed on it, and we displace here to here. Now we can see that the displacement, there is the displacement of this duster from one place to another. So we can say that with respect of time, at some time before this duster was here, but after some time it was here. Now we can see that the position of duster changed with respect to time. And also while studying the motion, one thing is to be kept in our mind, that what is the reference point? The reference point is any stationary point with respect to which we are measuring the motion. Reference point क्या है? कोई भी एक stationary point या stationary object, that is reference point. Frame of reference क्या है? कि ये फ्रेम, जैसे कि ये बोर्ड स्टेशनरी है, इसके रिस्पेक्ट में देखिए हम चल रहे हैं, तो यहां से हमें पता चला कि अभी तक यहां पोजीशन पे थे, अब इस पोजीशन पे आ गए. एक एग्जांपल और देता हूं कि इफ वी आर सिटिंग इन ए ट्रेन और हम लोग खिड़की से बाहर देखते हैं, तो बाहर जो पोल लगा रहता है, दैट इज रेफरेंस पॉइंट. जब ट्रेन चलती है, व्हेन द ट्रेन स्टार्ट्स रनिंग, then we can see that this pole does like this. वो पोल क्या होता है? पीछे चलता चला जाता है. उस पोल को देख के हम ये अंदाज लगाते हैं कि हाँ, ट्रेन एज स्टार्टेड मूविंग, ट्रेन चलना चालू हो चुकी है. तो स्टेशनरी पॉइंट क्या है? वो रेफरेंस पॉइंट, या उसको कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ व्हाट इज द रेस्ट? रेस्ट इज इफ एनी बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और with respect to the frame of reference. कि अगर कोई चीज अपनी जगह या अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रही है with respect to time, समय के अनुसार, अगर 5 मिनट तक ये डस्टर यहां पर रखा है तो 5 मिनट बाद भी वहीं रखा रहेगा. रेस्ट का मतलब ये है. और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, this is the frame of reference I have told you. This board is frame of reference and I am standing here. After 5 minutes I am continue standing here. So we can say that I am at rest. The position of mind is at rest because I am not moving. My body is not in motion. Before 5 minutes I was here, and after 5 minutes my position did not change and I am continue standing here only. Then we can say that my body is at rest. Now there are some types of motion. Basically there are 3 types of motion: linear motion, circulatory motion and vibratory motion. In the previous classes we have a little bit idea about these types of motions. Also some classifications of motions are uniform motion and non-uniform motion. They are also its types. The first type of motion is linear motion.
लीनियर मोशन एज द नेम सजेस्ट, लीनियर, लीनियर मतलब क्या है, लाइन से संबंधित। If the motion is in a straight line, when a body is continuing its motion in a straight line, कोई सीधी डायरेक्शन में अगर किसी बॉडी का मोशन हो रहा है, then it is said to be linear motion. एग्जाम्पल भी देखिए मैंने दिया है, एग्जाम्पल इज ट्रेन रनिंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक। कोई अगर ट्रेन है वो स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है, then it is said to be in linear motion. Then the train is said to be in linear motion. If any car is running on a straight road, सीधी रोड है उस पे कार स्ट्रेट रनिंग कर रही है, then it is said to be in linear motion. अब ये नहीं कहा जा सकता है कि स्ट्रेट रोड है कार जिगजैग चल रही है तो वो लीनियर मोशन नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर स्ट्रेट रोड है एंड कार इज आल्सो ट्रैवलिंग स्ट्रेट, देन कार इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन. Now the second type of motion is circular motion. Circular motion is what? When an object moves around another object in a circular orbit. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करता है, किसमें? सर्कुलर ऑर्बिट में, तो द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. अब सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड एक और मोशन होता है जिसमें कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. व्हाट इज रोटेशनल मोशन? व्हेन द बॉडी रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, देन इट इज सेड टू बी इन रोटेशनल मोशन. See, it is written here. When an object rotates on its own axis, then it is said to be in rotational motion. Now we have very good example of this circular motion as well as rotational motion. What is that? The example of this circular motion is Earth, our Earth. The planet Earth moves around the sun, keeping the sun at its center. This is sun and this is Earth. Also the Earth rotates on its axis. So we can say that Earth is revolving around the sun, also rotating on its axis. So we can say that our planet Earth is doing circular motion as well as rotational motion. Now the third type of motion is vibratory motion. What is vibratory motion? We can understand by the name itself. Vibratory means something related to vibration. Vibration से related कुछ ना कुछ होगा. That is vibratory motion. When any body moves to and fro about any fixed point, किसी भी fixed point के to and fro means इधर से उधर. अगर ऐसा मोशन हो रहा है, then the body is said to be in vibratory motion. वाइब्रेटरी मोशन में वो बॉडी कहलाएगी. फिर से एक बार बताता हूं कि कोई एक पॉइंट है उसके टू एंड फ्रो मोशन अगर हो रहा है, then the body is said to be in vibratory motion. That is why it is also known as oscillatory motion. Oscillatory motion means oscillation से संबंधित कोई मोशन. ऑसिलेशन में क्या होता था? एक पेंडुलम लटकाते थे, पेंडुलम को ऐसे करके खींच के छोड़ देते थे तो एक ऑसिलेशन होता था, जब वो पेंडुलम वापस अपनी वीक पोजीशन पर आ जाता था. तो ऑसिलेशन क्या है? वो पेंडुलम का मोशन टू एंड फ्रो अबाउट एनी मीन पॉइंट. दैट्स व्हाई दिस वाइब्रेटिंग मोशन इज आल्सो नोन एज oscillatory motion. Example is written. The best example of this vibratory motion is motion of pendulum in pendulum clock. पेंडुलम क्लॉक में जो पेंडुलम लटकता है, देखिए ऐसे ऐसे. So this is the mean point. To fro, to fro. This is the mean point. Now uniform motion. What is uniform motion? Uniform motion is also a type of motion, and it is also known as non-accelerated motion. इसमें क्या होता है? Acceleration नहीं होता, non-accelerated motion. We will discuss about the acceleration further topics. Before that, we have to cover this uniform motion. What is uniform motion? When a body covers equal distance in equal interval of time. Body जब equal distance cover करती है equal intervals of time, means
एक समय अंतराल में वो बॉडी कोई एक डिस्टेंस कवर कर रही है, निश्चित डिस्टेंस, कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि टाइम ड्यूरेशन है 5 मिनट्स का। इन 5 मिनट्स दैट बॉडी और एनी व्हीकल कवर्स अबाउट 90 किलोमीटर्स। इट इज वेरी फास्ट, आई नो, बट इट्स एन एग्जांपल। इन 5 minutes it travels about 90 kilometers. In next 5 minutes, if it is covering in 90 kilometers, then it is said to be uniform motion. Means अगर 5 मिनट में 90 किलोमीटर वो चल रही थी, तो अगले 5 मिनट्स में भी वो 90 किलोमीटर अगर चल दी तो वो बॉडी कहलाएगी किसमें? यूनिफॉर्म मोशन। फिर उसके भी 5 मिनट्स बाद अगर वो 90 किलोमीटर चल रही है तब भी वो बॉडी कहलाएगी यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स कि टाइम ड्यूरेशन भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। नाउ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? बॉडी एक डायरेक्शन में मूव करेगी और उसका मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, एग्जांपल क्या है? ट्रेन रनिंग कांस्टेंट एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कांस्टेंटली मतलब लगातार वो जो ट्रेन किस स्पीड से चल रही है? 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है। देन द ट्रेन इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ना स्पीड घट रही ना बढ़ रही। 5 मिनट पहले भी 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, 5 मिनट बाद भी वही स्पीड चल रही है। तो इसका मतलब क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट है तो किसी भी ड्यूरेशन पे अगर आप मेजर कर लें तो वो इक्वल डिस्टेंस ही कवर करेगी, क्योंकि स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा। वो व्हीकल जो उस स्पीड से चल रहा था वो 5 मिनट बाद भी उसी स्पीड से चल रहा है। और इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज डिस्टेंस इज ऑन y axis and time is on x axis, and the graph between distance and time is a straight line which is inclined at an angle with x axis or time axis. This straight line indicates that the body is possessing uniform motion. Here it is written uniform motion. Now the second type of motion is non-uniform motion. What is non-uniform motion? If a body travels unequal distance in equal interval of time or its vice versa, means time duration तो वही है, but उस time duration में अलग-अलग distance body cover कर रही है। For example, in 5 minutes, first of all the body is covering 90 km per hour, but after 5 minutes it is covering about 80 or 70 km per hour. मीन्स क्या है? पहले 5 मिनट में तो बॉडी ने कवर किया 90 किलोमीटर पर आवर, बट उसके जस्ट आफ्टर के 5 मिनट्स वाले जो 5 मिनट का ड्यूरेशन है उसमें बॉडी ने 70 या 80 किलोमीटर चली। इसका मतलब क्या है कि टाइम ड्यूरेशन तो वही रही, लेकिन उसका डिस्टेंस जो कवर करने का जो डिस्टेंस था वो क्या होगा? वेरी हो रहा है। पहले 90 था, फिर 80 या 70 हो गया। इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि आपका डिस्टेंस वही है लेकिन टाइम घट बढ़ रहा है। कैसे? कि कोई बॉडी है इस पॉइंट से चलना चालू की इस पॉइंट पर, हमने माना कि यहां से यहां तक जाने में उसको 5 मिनट का समय लगा, लेकिन इसके इतनी ही डिस्टेंस और कवर करने के लिए उसको मान लीजिए 7 मिनट लग गए। तो इस 5 मिनट यहां से यहां तक का 5 मिनट के लिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस के लिए 5 मिनट लग रहे थे, फिर उसके बाद की यहां से यहां तक की डिस्टेंस के लिए कितने लगे? 7 मिनट लग गए। मींस डिस्टेंस तो वो इक्वल है बट टाइम क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। उसी डिस्टेंस के लिए पहले 5 मिनट लग रहे थे, फिर बाद में उसी डिस्टेंस के लिए कितने लगे? 7 मिनट लगे। Then the body is said to be non-uniform motion. That's why non-uniform motion is also known as accelerated motion. अभी बेसिकली आपको एक एक्सेलरेशन का आइडिया दे देता हूं कि एक्सेलरेशन जैसे कि हम लोग बाइक में एक्सेलरेटर लेते हैं तो स्पीड वेरी करती है। पहले कुछ स्पीड होती है, फिर जब एक्सेलरेटर लेते हैं तो स्पीड चेंजेस, आइदर इट इज
it exceeds or it decreases when we throttle down the accelerator, then the speed decreases. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि आपकी स्पीड वेरिएशन होगा इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दिस विल बी देयर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड द बॉडी पॉसेस सम एक्सेलरेशन. कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन वहीं पे होता है जहां पर स्पीड वेरिएशन होती है. एग्जांपल क्या है? व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू व्हीकल इन मोशन. कोई व्हीकल था मोशन में था, उसमें एकदम से हमने क्या किया? ब्रेक्स अप्लाई कर दी. तो कोई जब कोई स्कूटर या बाइक मोशन में होती है तो ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? स्पीड डिक्रीज होती है. और अभी मैंने बताया कि जहां पर स्पीड में या वेलोसिटी में वेरिएशन होगा वहीं पे क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. तो इसका भी हम लोग ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इट इज कर्व्ड. The line is curved. Here it is origin O and time is on x axis and distance is on y axis. See, it is curved image. So students, our next topic is scalar and vector quantities. What are scalar quantities? Scalar quantities are those quantities which have only magnitude but no direction. Means क्या है कि स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका की कुछ मैग्नीट्यूड होगा. मैग्नीट्यूड होगा मतलब कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. फॉर एग्जांपल कि डिस्टेंस है, वर्क है, मास है. डिस्टेंस का हम लोग क्या कहते हैं कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस देन वी हैव नो आइडिया अबाउट डायरेक्शन. इन विच डायरेक्शन डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड. किस डायरेक्शन में मेजर करना है डिस्टेंस, कोई आइडिया नहीं मिलता. मास अगर आपसे कह दिया जाए 5 kg, 5 kg देख के आप क्या डायरेक्शन बता सकते हो? 5 kg टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट, अप, डाउन, क्या 5 kg? तो ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज जिसमें कि केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता. देन एग्जांपल आर वर्क, mass, distance, speed. Now second topic is vector quantities. What are vector quantities? अब इसमें क्या होगा? Vector quantities are those quantities which have direction as well as magnitude. जिसमें कि डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा. Quantities having magnitude as well as direction are called vector quantities. For example, force, weight, displacement, velocity. Force, when we are talking about force, जब force की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा. फोर्स की एक निश्चित डायरेक्शन होती है. वेट की एक निश्चित डायरेक्शन होती है, टुवर्ड्स अर्थ, अप साइड, डाउन साइड. डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कुछ देर पहले डस्टर का, कि किसी टेबल पे एक डस्टर रखा है, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर गया लेकिन उसकी एक डायरेक्शन हुई, यहां से डिस्प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन में, तभी हमने उसको क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट का. क्यों डिस्प्लेसमेंट का? क्योंकि उसने एक डायरेक्शन थी. वेलोसिटी और स्पीड में केवल डायरेक्शन का डिफरेंस है. अगर स्पीड किसी एक डायरेक्शन में हो रही है तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी. बेसिक डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में यही है. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी. अब वेक्टर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो पॉइंट यहां से यहां गए किसी एक निश्चित डायरेक्शन में, then it is said to be displacement from here point A to point B. But when there is no direction, zigzag motion, here to here, like this. Now we will reach to this point. Then the total distance covered by that body is
this. It means there is no direction in it. Direction is where? In vector quantities, from here to here. एक एग्जांपल और देता हूं कि क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, वो वॉशरूम जाने के लिए पूछते हैं, परमिशन चाहते हैं, मतलब मांगते हैं परमिशन कि सर मैं आई गो टू वॉशरूम। तो वो सीधे अपनी क्लास से क्या है, वॉशरूम गए और वापस आ गए, उनकी एक डायरेक्शन है। बट along with that there are some students which ask the permission to go to washroom, but they roam here and there to playground, to canteen, and then they go washroom. और फिर वहां से जब रिटर्न आते हैं फिर भी घूम घाम के आते हैं। तो डायरेक्शन उनकी कहाँ है, क्लासरूम से वॉशरूम तक की, लेकिन घूमते क्या है, पूरा स्कूल का राउंड मार के आएंगे। तो वो क्या है, जो स्कूल का राउंड मारा दैट इज डिस्टेंस, बिकॉज उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन कुछ अच्छे बच्चे जो वो थे, जो यहाँ से क्लासरूम से सीधे कहाँ गए, वॉशरूम, वॉशरूम से क्लासरूम, तो उनका क्या हुआ, वो उनकी एक निश्चित डायरेक्शन की, देन दैट डिस्टेंस दैट विल नॉट कॉल्ड एज डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसमें एक डायरेक्शन थी। डिस्टेंस कहां था, जहां पर कोई डायरेक्शन नहीं। वेक्टर क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, हाउ वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट we have studied earlier in previous classes, line segment this, and when we are calling it directed means direction, like this. That's why I have written directed line segment, that is an arrow mark. See this arrow mark. The length of arrow indicates the magnitude and the direction of arrow represents the direction of vector. जो इस arrow की length वो मैग्नीट्यूड शो करती है। See here it is written, the length of the arrow is magnitude, it is the tail of vector, and the direction of the arrow represents the direction of the vector.